जो आज प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का करवा रहे हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर है और उसमें हमने कुछ डिजीजेज शॉर्ट लिस्ट करी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। कुछ डिजीजेज बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज वायरल डिजीजेज हैं, कुछ प्रोटोजोअल डिजीजेज हैं एंड कुछ डिजीज फंगल डिजीजेज हैं। तो वो प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो डिजीज है लैक्टोस्पायरोसिस और उसको प्रेजेंट करने आ रहे हैं अभिषेक एंड सत्यजीत कुशवाहा। Leptospirosis is a great infection caused by a bacteria Leptospira. जो Leptospirosis एक great infection disease है, bacteria Leptospirosis होती है that can affect human, dogs, rodents and many other bad domestic animals। ये जो एक्यूट सब एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म जो होती है उसमें जो है और सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसमें जो है पेटिशियल रैशेज और इकाइमोटिक हेमरेज भी होता है। पेटिशियल The germ responsible for cholera was first discovered by the Italian physician named Filippo Passini. The पहला जो जर्म था कोलरा का वो एक इटालियन फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था फिलिप्पो पैसिनी। Researchers have estimated that each year there are 1.3 to 4 million cases of cholera and 21,000 to 1,43,000 deaths worldwide due to cholera. रिसर्चर्स ने बताया है कि हर साल 1.3 मिलियन से 4 मिलियन केसेस ऑफ कोलरा मिलते हैं, जिसमें 21,000 से लेके 1,43,000 डेथ पूरे देश में होती हैं कोलरा की वजह से। कोलरा when a person consumes the contaminated food and water, the bacteria release a toxin in the intestine that produces severe diarrhea. जब Measles is a highly contagious viral disease caused by the measles virus. Measles virus named Morbillivirus family, Paramyxoviridae family. It is primarily affected young children but can occur at any age in non-vaccinated individuals. Measles is characterized by a red, blotchy skin rash, fever and other respiratory symptoms. Common complications: ear infections and diarrhea. Severe complications include pneumonia, most common cause of measles related deaths, encephalitis, brain inflammation and blindness. At risk population is infants, pregnant women, malnourished individuals and those with weakened immune system. Tetanus comes from the Greek word that is tetanos, that is its meaning is to stretch, and first it was described by Hippocrates. Tetanus is a serious disease of the nervous system caused by a toxin producing bacterium. Tetanus spores can be found in soil and the excreta of animals and humans. Tetanus can occur if the newborn is delivered uncleanly, which can happen when mothers give birth at home in poor communities. Route of infection of tetanus: apparently trivial injuries which is not very serious, animal bites, human bites, open fractures and burns. Herpes zoster. It is commonly known as shingles. It is a viral infection caused by the varicella zoster virus. It is the same virus that causes chickenpox. After you have chickenpox, the virus stays in your body. It may not cause problems for many years, but as you get old, the virus may become active again and cause shingles. मैं शुरुआत करता हूँ सिम्टम्स ऑफ हेरपीज के। तो इससे सिम्टम्स क्या रहते हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेन होता है, वर्निंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है और जो हम लोग का रेड स्पॉट पड़ जाता है, ठीक, इचिंग होती है बहुत, फीवर आने लगता है, हेडेक होता है और हम लोग को बहुत थकान महसूस होती है। Amoebiasis also affect about 15% of Indian population. इसका प्रिवलेंस रेट है अप्रॉक्स 15%। अब बात करते हैं एमीबियासिस क्या है। अमीबियासिस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन पैरासाइट दैट इज कॉल्ड एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। इट इज़ अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी। जीआईटी में भी मेन जो इन्फेक्शन करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को करता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ही
हमारे वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन का प्रोडक्शन भी होता है। इसका सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पहले इसके सिम्टम्स होने में एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमेन्स में पेन्स क्रिएट होगा, डायरिया होगा, डायरिया में क्या होगा 3 से 8 बार सेमी बाउल पास होगा, म्यूकस में कभी कभी ओकेजनली ब्लड भी आते हैं, पूरे शरीर में थकान रहेगा, एक्सेसिव एसिडिटी बनेगा, रेक्टल पेन होगा जब हम बाउल मूवमेंट करेंगे। Pneumonia is an infection of pulmonary parenchyma of distal bronchioles which consist of respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac and alveoli। तो निमोनिया होता है वो एक इन्फेक्शन है पल्मोनरी पेरेनकाइमा का, पल्मोनरी पेरेनकाइमा ऑफ डिस्टल ब्रोंकियोल, डिस्टल ब्रोंकियोल्स के पल्मोनरी पेरेनकाइमा का ये इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सेक्स और एल्वियोलाई में भी हो जाता है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो फीवर और डिस्निया होते हैं। इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन में क्रैकल साउंड मिलता है, परकशन में फीलिंग ऑफ डलनेस मिलता है, चेस्ट में फिजिकल साइंस में टैकीकार्डिया, टैकीपनिया मिलता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो कैनेडा एल्बिकेंस होता है, ये एक मेन कॉजेटिव एजेंट होता है। इसकी और भी अदर स्पीशीज़ होते हैं लाइक कैनेडा ग्लैब्रेटा, कैनेडा पैराप्सिलोसिस, कैनेडा ट्रॉपिकेलिस एंड कैनेडा क्रूसी। कैनेडा ऑरिस जो कि फाइंड आउट हुआ था 2013 में, जिसमें ये पाया गया था कि इट स्प्रेड्स ईजिली इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, इट स्प्रेड्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम सब्जेक्ट ऑन टू सर्विसेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ये सर्फेसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे पाया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे अपना ज़्यादा लंबा जी सकता है, तो ये हम लोगों में इससे स्प्रेड होता है। Here it is oral candidiasis. It is also known as thrush, an infection that causes wide sore in mouth, throat and esophagus or tongue. Now let us see the images. Here it is showing the oral candidiasis. Now if we talk about India, world's largest foci of visceral leishmaniasis, it accounts for 50% of the total burden, which means India has the biggest contribution in leishmaniasis. It is endemic in 4 states, in India, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Uttar Pradesh. An estimated 165.4 million population is at risk in India and about 1 lakh cases occurs annually. Sign and symptoms: recurrent fever, बार बार का बुखार आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पैलर एंड वेट लॉस विद प्रोग्रेसिव इंडिकेशन। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम होना, पैलर एंड वेट लॉस होना है या फिर बॉडी का कलर डिस्कलेशन होना विद प्रोग्रेसिव इमिकेशन यानी शरीर का छीड़ होना, वीकनेस, स्किन ड्राई, थिन एंड स्कैली एंड हेयर में भी लॉस्ट होता है। पर्सन सो ग्रेस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ हैंड, फीट, एब्डोमेन एंड फेस विच गिव्स द इंडियन नेम काला जार मीनिंग द ब्लैक फीवर। ये जो डिसीज़ है जियार्डियासिस, ये एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है। जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है जियार्डिया लैम्बलिया। इसके द्वारा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है मोस्टली। ये इट्स रेंज अमॉन्ग्स मोस्ट कॉमनली डिपोर्टेड वाटर बॉर्न डिसीजेज ग्लोबली। ये वाटर बॉर्न डिसीज़ है, ये वाटर के द्वारा कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उसके द्वारा ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो रिपोर्ट किया गया है उसमें ये मोस्टली कॉमन बताई गई है जियार्डियासिस जो वाटर के द्वारा होती है। इससे मिलियंस ऑफ पीपल हर ईयर अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। और जो जियार्डियासिस है इसका जो प्रोटोजोआ है वो एक आउटर सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है जिससे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अलाइव बना रहता है और वो किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एबल रहता है। जैसा कि अभी नीतेश ने बताया कि ये सिस्ट के फॉर्म में हमारे कॉन्टामिनेटेड फूड से बॉडी में एंटर करता है। फिर ये एक्सेस सिस्टेशन मतलब एक प्रोसेस है जो हमारे ड्यूडेनम में जाके होती है, जो सिस्ट को ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीज़न करती है, लेकिन वहाँ पे सारे सिम्टम्स को शो नहीं करती है। उसके बाद वो जाती है जीजनम में, वहाँ पे जाके इंसाइटेशन प्रोसेस में पहुँचती है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थ्रू वो इंसाइटेशन को मतलब सिस्ट को फिर से मतलब ट्रोफोजाइट को फिर से सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और जो हमारे फीकल
से निकलती है वो सिस्ट के फॉर्म में निकलती है। See, whenever you present something, it should not be like you are reading something. आपका उद्देश्य जो है ना, आपका जो इंटेंस इच्छा होनी चाहिए आपको कि सामने जो बैठा है उसको मैं सिखा रहा हूँ, है ना। चाहे टीचर बैठे हो, चाहे कोई भी कितने भी बड़े आदमी बैठा है, आप अगर उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको लगना चाहिए कि ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वॉट इज़ प्रेजेंटेशन। कुछ बहुत लोगों ने अच्छा किया, दैट फातिमा ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड मोर देन एवरीथिंग, आप जितने बातें बोल रहे हो ना वो सारे स्लाइड में होना ज़रूरी नहीं है। स्लाइड में बहुत मिनिमल स्लाइड, प्रेजेंटेशन में स्लाइड का काम क्या है? टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए स्लाइड है ना। स्लाइड में आप क्यूरियोसिटी पैदा करो, जैसे कि फीवर के लिए वो थर्मोमीटर का डायग्राम डाला था। यस, दैट इज़ हाउ यू नीड टू टेल दोज थिंग्स। मैं अभी प्लस पॉइंट क्या था? दैट वाज कॉन्फिडेंस, है ना। अभी सर भी बैठे हैं एंड रिमेंबर नॉट टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। रिमेंबर, आप कोई टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी तैयारी और आपकी कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में मेरे जितने किसी को नहीं पता, और वो होना चाहिए एक्चुअल में, उतना तैयारी आपको करना चाहिए। आपका नाम क्या है जो पहले बैठे पीछे? हाँ, उमा ना। यू डू एंकरिंग ऑल्सो, राइट? हाँ, वो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे दिख रहा था जब बात कर रहे थे ना। हाँ, वो उसका जो इफेक्ट है यहाँ पे दिख रहा था। दैट शुड बी योर थॉट। आप अगर कुछ पढ़े हो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इवन टू दैट संतोष जो दुकान पे बैठता है ना, समोसा बनाता है, उतना सिंप्लीफाई करके बोलने की क्षमता आपको आनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अप्रोच, कौन से अप्रोच से आप उसको पढ़ रहे हो उसी से आएगा। Presentation means, I would like to give a simple example. The person who studied, got graduated in history may not be able to explain the historical monument. The one who is explaining by the name of guide, जिसकी एजुकेशन में भी ये कॉलेज लेवल तक पढ़ा होगा या हाई स्कूल लेवल तक पढ़ा होगा, he will be explaining it very effectively. आप लोगों ने ये देखा होगा। कहीं भी अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे या ताजमहल पे जाइएगा, वहाँ पे कुछ गाइड होंगे, उनका एजुकेशन कोई PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है, लेकिन एक टॉपिक को इतनी तरीके से पढ़े होंगे और हर जानकारी को अपने पास रखे होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ इज प्रेजेंटिंग इट, दैट मेक्स द डिफरेंस। ओके, अगर मुझे कोई टॉपिक दिया गया है, आई शुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली and assign them properly, and then with confidence I should be able to present it. So that should be there. If this ये पहली बार है, for this I really appreciate your efforts. Sir, ये पहली बार है तो इस चीज़ के लिए मैं इन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इतनी कॉन्फिडेंस से आप लोग प्रेजेंट करोगे। यू माइट हैव borrowed it from the net, अगर नेट से अगर आपने लिया होगा तो कोई गलत नहीं है, ये पहला अटेम्प्ट है और उस अटेम्प्ट में आपने कोशिश किया, दैट आई अप्रिशिएट। आपका जो एफर्ट है ना, कोशिश कर रहे हो ना, उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो एज अ एकेडमिक पार्ट ऑफ दिस NCISM, रियली अ गुड बिगनिंग। वो असेसमेंट क्राइटेरियाज आपको रीच करने के लिए यू नीड टू पुट योर मोर एफर्ट्स, और ज़्यादा आपको एफर्ट्स देनी होगी। एंड आई होप यू विल डू इट। आप लोग करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू पीपल कैन ऑपरेट टेक्नोलॉजी वेरी इजीली एंड यू कैन अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी वेरी इजीली। उस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नेचुरली अपडेट हो जाएंगे और कम अप करेंगे। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान and especially the staff member who is working with. So really I appreciate your efforts, students, and I really appreciate the Department of Rog Vigyan for his initiative activity. All the best, and I really appreciate your efforts. Thank you.